It was exciting here. It was exciting. Very good. Okay. Okay. Hajra, how was your day? Assalamu alaikum, ma'am. Alaikum salam. How are you? I am little bit fine, but little bit ill. You are ill. Why? Yes, What happened? क्या हुआ? I did not know confirm, but it's a body pain and a Okay. little bit headache Okay. Do you have because the flu also? motion is, The weather is? Yeah. yeah, the weather is also like that. Okay. Okay. Right. So for that, I will give you an idiom because nowadays it is very cold. आजकल बहुत ठंड है. तो जिनको ठंड लग जाए, Yes. ठंड लगने के लिए एक idiom होता है. एक सेकेंड. मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे. ओके. जिन जिनको ठंड लगी हुई है, दे कैन से दैट आई एम अंडर द वेदर. अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना. स्पेशली जब आपको ठंड लग जाती है ना, उस सिचुएशन में आप बोलते हैं आई एम अंडर द वेदर. Okay. राइट. ये एक ईडियम है. जब आपको ठंड लगे आपने कहना है टुडे आई एम अंडर द वेदर. जब आपको ठंड लग जाए, सर्दी लग जाए, बीमार हो जाए आप. वैसे भी जनरली भी अगर कोई बीमार हो तो वो ये कह सकता है आई एम अंडर द वेदर. कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? हाँ क्या मैम? मैम आ ओके. गया. कैन यू प्लीज मेक अ सेंटेंस? हाउ आर यू टुडे? कौन सा सेशन? जी. आई एम अंडर द वेदर. यू आर अंडर द वेदर. ओके. टेक सम मेडिसिन्स. ओके. 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 राइट. ओके. आई विल टॉक टू यू वन बाय वन नाउ. थैंक यू. हाजरा प्लीज आप माइक ऑफ कर दें. यस महक, हाउ आर यू? शहजादी, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम. Walaikum Assalam. I'm हाउ आर fine. यू? ओके. हाउ वाज योर डे? Mm, It was good, it was bad, it was average. How was your day? no, my day is very busy. You were swamped today? I was swamped with work, you can say. मैं काम में, आप काम में बिजी थी पूरा दिन? No, मैं स्कूल पढ़ती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ और अपना भी पढ़ती हूँ इस वजह से हाँ तो ये काम कोचिंग। हुआ ना. हाँ तो ये काम हुए सारे. तो आप कह सकती है माई डे वॉज वेरी बिजी बिकॉज आई वॉज swamped with work. Okay, swamped work. Swamped with work. Swamped with work. Okay, fine. Right, thank you. Please turn off your mic. Aisha, how are you? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Aisha, Walaikum how are you? salam. I'm fine, and you? I'm good, thank you. How was your day? Mm, my day was good. Okay. At what time did you wake up? Early morning, I woke up early in the morning. early Okay. in the At what time? morning. At 7:30. At 7:30. Thank you. Please turn off your mic. Okay. Mehak, how are you? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मैम. आई एम गुड. How are you? Okay. How was What your day? about you? I'm It good, thank you. was How? it was Yeah. great Oh, day. it was a great day. Okay. At what time did you Yes. wake up? I wake up 12 p.m. You woke up at 12 p.m. Yes. Okay. And at what time do you work or study? I'm work. I actually own my own business. You own your own business. What is it like? What is it about? Like is a bias collection.
Abaya's collection. That's very interesting. Okay, thank you. Yes. Please turn off your mic. Right. Okay. Right. We have Kirat. How are you? Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Kirat? I am fine, and you? I'm good. Thank you. How was your day? My day is so nice. Your day was nice. That's very good. At what time did you wake up today? 9 o'clock. At 9 o'clock. Okay. Right. Thank you so much. Assalamu alaikum, Saida. How are you? Saida, are you there? Okay. Savera, how are you? Assalamu alaikum. Yes, Saida, how are you? Alhamdulillah. How was your day? My day was good. Okay. At what time did you wake up? At 5:30 a.m. Oh, 5:30 a.m. That's very good. Okay. Thank you. Savera, how are you? I am fine, and you? I'm good. Thank you. How was your day? My day was busy. Okay. You were swamped with work? Yes, I was swamped with work. Okay. That's good. Right. At what time did you wake up? I get up early in the morning. You get up early. Okay. Okay. Thank you. Shehzadi, how are you? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Shehzadi, how are you? Walaikum assalam. I'm fine. Okay. How was your day? My day is very busy. Your day was It's very busy. Okay. 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 with At what time did you wake up? swarmed with work. Oh, very good. And at what time did you wake up today? मतलब आप आज कितने बजे सुबह उठी थी? आपने आगे से कहना है I woke up at I woke up. मैं at सुबह 6 बजे उठती हूँ. At 6 I wake up और at. अच्छा, आपने रोज की हैबिट बतानी है तो फिर आप कहेंगी I wake up at 6 a.m. okay. Okay, very good. That's nice. Thank you. Okay, class. Thank So I'm going to share. Thank you so much. I'm going to share something really interesting today with you people. So it is 1 second. Okay. Yeah. Mm, yes. So can you see this picture on the screen? All of you raise your hands who can see the pictures. Picture on the screen, sorry. जितने लोगों को पिक्चर नजर आ रही है, please raise your hand. Thank you. Right. Okay. Right. Right. Most of you can see this. Okay. Okay. जिनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दें. मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ, उसके बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे. सब लोग माइक ऑफ कर दें. थैंक यू. शहजादी प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. थैंक यू. ओके. Right. So this picture is about some of the personality traits. पर्सनैलिटी की कुछ खासियत, कुछ चीज़ें इसमें मेंशन है. आपने कल की तरह एक एक क्वालिटी पिक करनी है. मैं सबसे पूछूंगी बारी बारी, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको क्यों लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है. आपने पहले सेंटेंस बनाना है. जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कहूंगी आई एम अ नाइट आउल क्यों, बिकॉज आई स्लीप वेरी लेट एट नाइट. ठीक है. बट आई बिलीव दैट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट. ये थोड़ी सी डिटेल है. तीन तीन सेंटेंसेस हो गए. इसी तरह आप लोगों ने तीन सेंटेंसेस बनाने हैं कि आपको क्यों लगता है कि नो
इट ऑल, वो इंसान जिसको लगता है वो हर चीज का हरफन मौला होते हैं ना, तो वो या हर चीज में लोग एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं या हमें सब पता है, उनको हम नो इट ऑल कहते हैं। पार्टी एनिमल्स वो होते हैं जिनको पार्टीज करना, गैदरिंग्स में जाना बहुत पसंद होता है, बहुत सोशल होते हैं। यस मैन ऑलवेज अग्रीज, यस मैन वो होता है जो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाता है। लूज कैनन होता है अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि वो इंसान जिसका कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। बटर फिंगर्स ड्रॉप्स थिंग्स, सिंपल अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, जिसको कहेंगे ना चिकने हाथ, के हाथों में कोई चीज ठहरती नहीं है, हर चीज हाथ से गिर जाती है, ऐसे लोग होते हैं बाज। दे हैव बटर फिंगर्स, यू कैन से दैट आई हैव बटर फिंगर्स, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ से हर चीज गिर जाती है। शो ऑफ तो पता ही है सबको, जो अटेंशन सीकिंग होते हैं, जो शो मारते हैं, शो मारना, ठीक है, दैट इज अ शो ऑफ। अर्ली बर्ड वो होता है जो सुबह बहुत जल्दी उठता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बताया कि हम 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो वो कह सकते हैं दैट आई एम एन अर्ली बर्ड, क्योंकि अर्ली बर्ड ई से शुरू हो रहा है और एक ई एक वॉवल है, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ड के तौर पे एन लगाएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि वो सुबह जल्दी उठता है, तो वो कह सकता है आई एम एन अर्ली बर्ड। ओके। नाइट आउल, नाइट आउल जो है वो होता है जो रात को देर तक जागते रहते हैं, उनको नाइट आउल बोलते हैं। इसमें हम अ नाइट आउल लगाएंगे क्योंकि ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो होगा वो अ होगा। आई एम अ नाइट आउल। फ्री एनिमी, फ्रेनेमी, फ्रेंडली प्लस राइवल, के कुछ लोग जो अच्छे तो बनते हैं, फ्रेंड भी होते हैं, फ्रेंड बनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से जो है ना वो आपके साथ दुश्मनी या कोई प्रॉब्लम रखते हैं, उनको कहते हैं फ्रेंड एनिमी, फ्रेनेमी। ठीक है, फ्रेनेमी ये एक जोक के तौर पे भी आजकल लोग यूज करते हैं वर्ड को, फ्रेनेमी। इसका मतलब है जो ऊपर से फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनके कुछ और मोटिव्स होते हैं। ठीक है, ये है इन वर्ड्स के मीनिंग्स। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप लोग इस इन वर्ड्स को देखें, फिर मैं स्टार्ट लूंगी आयशा से, वो मुझे बताएंगी उनको क्या लगता है वो इनमें से क्या है। आप लोग सब 1 मिनट के लिए इसको देखें। Okay, Aisha, I'll start with you. Yes. What do you think you are? I think I am early bird, up early, and also night owl, stay up late. Okay, you are an early bird and a night owl. Both. Yes, Okay. yes. Do you think it's a good habit? Uh, maybe. Maybe. Okay. What do you do at night, like, if I may ask? Mm, Do you study or read books, or what do you do? Study Or you just okay, that's very good, very good. And why you have to wake up early in the morning? for studying. For studying, okay. Okay, I think you are very good in studies. That's very good. Thank you, Aisha. Mm, Okay, Iman, you are next. Yes, Iman. Please turn on your mic. Yes, what do you think you are? I think I'm a party animal Oh, that's good. Why? Why do you think you are a party animal? because I love gatherings, parties, and other. Other things. That's very good. That's very good. Do you think it is a good habit? I think so. Yes, because by, okay, what do you learn from social gatherings? Do you learn anything? Actually, I do social. Yeah. Okay, right. Thank you. Okay, we have Iram. Iram Pradhan. Right. Yes, Iram. What do you I think think you are? I think I am yes man because I always agrees with everyone. I think it's a very bad habit because we should not say always yes because sometimes you should say no. So You should it's learn to say no. Yes, very good. yes. Right. Always we should not say yes. We should also say no. I think Yeah. it's
Sometimes it's good, sometimes it's bad. Okay, right. Have you ever faced any problem because of being a yes man? Yes. Always I regret Oh, that why I say yes. I should say no. But मैनेज हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से. okay, okay, ठीक है. Thank you so much. Okay, Hajra, what do you think you are? Ma'am, I think I am better finger persons, and also Why I you am drop an everything? early bird. You are an early Yeah, bird, I right? uh, ma'am, I don't know, but anything in my hands just drop things. Drop. I just drop things. I did not know. मुझे पता You भी do नहीं not. चलता मेरे हाथ से चीजें गिर जाती. Okay, you drop things unknowingly. हाँ, unknowingly. Okay. फिर तो बहुत डांट पड़ती होगी आपको घर में. इतनी पड़ती है कि मेरे भाई कहते हैं तुम्हारे हाथों को किसी ने बददुआ दी है. बस अब ये कह दो I have butter fingers, right? हाँ, I have butter fingers and I'm early bird. At what time do you wake up every day? Every day like 6, and today I was woke up in 4:30 am. Today I woke up at 4:30. Yeah. You woke up at 4:30 today. Okay. That is Yeah. a good habit. Being an early bird is a good habit. Thank you so much. Okay. You're welcome. Now let's talk to Mehak. Mehak, yes. What do you think you are? Ma'am, I think I am party animal because I love parties and go for the parties and gathering. It's my, I think, good habit. And I am also a night owl too because I stayed up late. You stay up late. Okay. At what time do you sleep? Yes. Ma'am, normally I sleep at 3 a.m. or Oh my otherwise God. 4. Oh my Yes. God. Okay. That's too late. Okay. Yes. Okay. Thank you. Hajra, did I talk to you? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Saida, yes. What do you think you are? जो miss हो जाए, please raise your hand. Yes, Saida, what do you think you have? The quality, which quality do you think you have? Saida, yes. Are you there? Yeah, Yes, I am. yeah. Early bird is my quality, and know it all is sometimes yes man, and sometimes I'm not yes man. मगर Okay. You said most that of you the are time, know it all. most of the time, yes man. Yes, man. Okay. And do you think you are know it at all? Know it all? Know it all. Most of the time, I'm ready to do all works. Okay. And you think you are expert in everything, right? I think, Okay. Do and you think I it is a good habit? good habit. कभी कभी फंस जाते हैं इसमें, लेकिन ये Sometimes कि you get okay. यस जी, लेकिन ये मगर ये है कि ज्यादातर जो है वो लोगों की हेल्प हो जाती है. okay. Perfect. Right. Thank you. Let's see who's left. Okay. Shehzadi. Yes. Yes, ma'am. What do you think you are? Yes. आपको क्या लगता है आपकी क्या क्वालिटी इनमें से? Yes, I woke up early morning 6 o'clock. So you are an early bird? Yes, Just say that I am an early bird. I am an early bird. That's very good. Do you think it is a good habit? आपको लगता है ये अच्छी Yeah, आदत है? जी बिल्कुल. Definitely. Waking up early in the morning is a very good habit. Thank you so much. Thank you. Savera is left. Okay, Savera, yes. I'm sorry. I just missed out. Yes, Savera. Ma'am, I think I'm early bird. You are an early bird. That's good. At what time do you wake up?
I wake up 6:30 and Okay, today I wake up 7:30. that's good. Uh, Do you think it is a good habit? yes, Okay, this is that's very good. Thank you so much. Thank you. Right. Thank you, all of you. Okay, so after this, I'm going to discuss something with you people. 1 minute. Where is it? Yes. Let's see this. Mm, okay. So these are something that are people very that pe make people very much confused sometimes. So हम लोग क्या यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में? ये हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन। मेरी टीचिंग करियर के 9 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है सबसे ज्यादा इंग्लिश में स्टूडेंट्स को ये चीज कंफ्यूज करती है। तो मैं ये चीज जरूर एड्रेस करती होती हूँ ताकि पता चल जाए। जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो आई यू वी दे, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? आई हैव बीन। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब स्टार्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी तक चल रहा है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो उस पे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। वी हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से वहां जा रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं। राइट। ओके, ही शी इट के साथ भी यूज हैज बीन। राइट। लेकिन जब आती है पास्ट परफेक्ट की बात तो आई यू वी दे ही शी इट सबके साथ हैड बीन आता है पास्ट टेंस में। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में आई यू वी दे के साथ हैव बीन और ही शी इट के साथ हैज बीन। अभी मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि समझ आया किसी को? अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड। क्योंकि हैव बीन हैज बीन मैंने ऑब्जर्व किया बहुत प्रॉब्लम है। लेट मी सी इफ आई हैव अ रिजन हैंड। यस आयशा। मुझे पहला वाला समझ नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट की है। एक एग्जांपल दे दे तो समझ आ जाएगा। अच्छा ठीक है। और किसको समझ नहीं आया? राइट ओके। जो आई यू वी दे है उसके साथ हम लोग हैव बीन लगाते हैं। ही शी इट के साथ हैज बीन लगाते हैं। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क, वो अपना काम कर रही है। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। इट हैज बीन ईटिंग। अच्छा, एनिमल्स होते हैं ना, जानवर, जानवरों में अगर हमें किसी जानवर का जेंडर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तो उनके लिए हम लोग इट लगाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये केस नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में हमें या मोस्टली पता होता है कि वो ही है या शी है, तो हम उसके लिए इट नहीं लगा सकते ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन जानवर का अगर हमें जेंडर नहीं पता तो उसके साथ हम इट लगा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर इट जो है वो नॉन लिविंग चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीजों के लिए। और एनिमल्स के लिए भी होता है जब उनका जेंडर हमें पता ना हो। तो लेट सपोज कोई हमारे सामने बिल्ली है, हमें नहीं पता वो मेल कैट है या फीमेल कैट है, और वो कुछ खा रही है तो हम कह सकते हैं इट हैज बीन ईटिंग। ठीक है। अब हैव बीन पर आते हैं। आई यू वी दे, इनके साथ हैव बीन आता है। आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रही हूं, मैं सुबह से सो रही हूँ या रात से या जो भी आपका टाइम है। यू हैव बीन ईटिंग, तुम खा रही हो। ठीक है। तुम सुबह, आई यू हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खा रही हो। ठीक है। वी के साथ भी यही हैव बीन आएगा और दे के साथ भी हैव बीन आएगा। आई होप इट इज क्लियर। लेट मी सी इफ आई हैव एनी हैंड। ओके राइट। एक चीज और मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है। अच्छा
ये देखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल में जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बात होती है, फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगाते हैं, सेकंड पर्सन के साथ ये लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ ये लगाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा आई, जो आप अपनी बात कर रहे थे उसको, या वी, हम, ठीक है, मैं या हम को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर है तो आई वॉक, प्लूरल है तो वी वॉक। आई एम, वी के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ड आर, आई के साथ लगाते हैं एम। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम कोई काम की बात हो रही है या किसी चीज के बारे में बात हो रही है तो हम वी के साथ आर लगाते हैं। सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है, यू को सेकंड पर्सन कहा जाता है। यू वॉक, यू आर, ठीक है। यू के साथ एक्शन वही होगा, प्रेजेंट में सिंगुलर में भी यू वॉक होगा, प्लूरल में भी यू वॉक होगा। जाहिर है यू जो है तुम, वो सिंगल होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन की जब बात आती है तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही शी इट। ही शी इट वॉक्ड, दे वॉक्ड, ये प्लूरल में आ जाएगा। ही शी क्या बन जाता है, ही शी इट बन जाता है दे, जैसे आई बन जाता है वी जब ज्यादा लोग होते हैं, और जब ही शी इट की बात करेंगे तो दे बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन होता है ये। इसी तरह ही शी इट, इनमें से कोई भी, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं इज, और दे के साथ हम लगाते हैं आर, जैसे वी के साथ हम आर लगाते हैं, ठीक है। कितने लोगों को समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। Okay, thankfully, I believe it is clear. Yes, ma'am. Okay, let me share something important. Okay, टाइम एक्सप्रेशंस की हम बात कर लेते हैं कि जब हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन आती है कि टाइम के बारे में बात एक्सक्यूज मी करते मैम, हुए, सॉरी, यस प्लीज। आप ये सिंगुलर प्लूरल एक दफे दोबारा शेयर कर सकते हैं? असल में मैं लिख रही थी तो थर्ड पर्सन मैंने आधा लिख कर। हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ बिल्कुल। अगर मैं ये इस क्लास के बाद ग्रुप में शेयर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आप बाद में शेयर कर देना। हाँ, मैं ग्रुप में शेयर, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ ले, फिर मैं दोबारा लगा देती हूँ। नहीं नहीं, आ गया, समझ में आ गया। चले परफेक्ट, ठीक है, बस फिर मैं क्लास के बाद ये ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके, अच्छा, पास्ट में द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम आर वर्ड्स और phrases that indicate when an action takes place, and they can refer to the past, present, future. These expressions help clarify timing of events, often working with different verb tenses to establish time in a sentence. जब टाइम की बात होती है ना, पहले हम पास्ट में देख लेते हैं, तो वक्त की बात हो रही है तो कैसे हो रही है। अब हमारे उर्दू में जैसे आने वाले कल को भी कल कहते हैं, गुजरे हुए कल को भी कल कहते हैं। इंग्लिश में ये केस नहीं होता, गुजरे हुए दिन को हम लोग यस्टरडे कहते हैं और आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग पास्ट के जो टाइम्स होते हैं ना, उनको कैसे, उनके लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। यस्टरडे कल के लिए इस्तेमाल हो गया, लास्ट नाइट गुजरी हुई रात, लास्ट वीक गुजरा हुआ हफ्ता, लास्ट ईयर गुजरा हुआ साल, 2 days अगो 2 दिन पहले, ठीक है। अ फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले, इन 1957, 1975 या कोई भी ईयर है तो उसके साथ हम इन लगाते हैं, ठीक है। अर्लियर टुडे, आज सुबह, मतलब आज दिन में। ये नहीं कि अगर आप, मैं अभी बात करूं और मैंने ये कहना हो कि मैं आज दिन में कुछ टाइम पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो मैं कहूंगी आई वेंट टू द डॉक्टर अर्लियर टुडे, कि सुबह दिन का जब टाइम था, अर्ली अर्ली टाइम था, उस टाइम में मैं डॉक्टर के पास गई। अगर आपको नहीं पता कि आप कितने बजे गए एग्जैक्टली तो आप कह सकते हैं अर्लियर टुडे, आई टुक अ क्लास अर्लियर टुडे, कि सुबह मैंने दिन में टाइम, जब अर्ली टाइम था तो मैंने कोई क्लास ली, ठीक है। बैक देन, कि उस वक्त की बात है, व्हेन आई वाज इन स्कूल बैक देन, जब आपने टाइम नहीं बताना तो आप बैक देन कह सकते हैं, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, काफी टाइम पहले, बहुत पुरानी अगर कोई बात करनी है तो अ लॉन्ग टाइम अगो। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। इन माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी नॉटी। By the way, I was not naughty in my childhood, but you can say that in my childhood I was very naughty. Recently, अभी अभी जिसको कहते हैं ना, हाल ही में, हम उर्दू में कहते हैं ना, उसको हम लोग रिसेंटली कहा जाता है।
अ लिटिल वाइल अगो, कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले, ठीक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, अ वाइल अगो। शी केम टू माई हाउस अ वाइल अगो, वो कुछ देर पहले मेरे घर आई है। एन आवर अगो, एक घंटा पहले। वन वीक अगो, अगेन वही के एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता गुजर चुका है इस चीज को। लास्ट मंथ, इन द रिसेंट पास्ट। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है इस दौरान, ठीक है। प्रीवियसली मतलब आप अगर कोई काम हो चुका है तो आप उसको कहते हैं प्रीवियसली। इसकी मैं एग्जांपल दे देती हूँ। I was nowadays I sleep very early. Previously I was sleeping very late. कि पहले मैं पीछे पीछे का अगर बात करूं तो मैं लेट सो रही थी, लेकिन आजकल मैं जरा जल्दी सो रही हूँ, ठीक है। एजेस अगो के सदियों पहले, बहुत साल पहले, एजेस अगो, ठीक है। इन द पास्ट, बिफोर दैट, नॉट लॉन्ग अगो। नॉट लॉन्ग अगो हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे हमें ये कहना हो कि अभी इतना वक्त नहीं गुजरा इस चीज को। आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल नॉट लॉन्ग अगो, कि अभी काफी टाइम नहीं गुजरा, मतलब बहुत रिसेंटली मैं एक शॉपिंग मॉल गई थी। दैट डे बिफोर, यस, द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, जो गुजरा हुआ परसों है ना, तो मतलब जो गुजर गया था वक्त, जिसको हम उर्दू में परसों बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। मैं प्रेजेंट पे जाने से पहले सवाल ले लेती हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। देयर इज नो हैंड रेजन। अगर किसी का फिर भी क्वेश्चन है, आप माइक ओपन कर लें। ओके, राइट। हम लोग प्रेजेंट डे की बात, प्रेजेंट में अगर टाइमिंग्स की बात करेंगे तो कैसे होगी? टुडे, आज, दिस वीक, इस हफ्ते, दिस मंथ, इस महीने, दिस ईयर, इस साल, एट द मोमेंट, इस वक्त, नाउ, बिल्कुल जिस टाइम पे बात हो रही है उस वक्त की बात, ठीक है। एट नाउ डेज, आजकल, दीज डेज। नाउ डेज और दीज डेज, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ आज के लिए। कल मैं आपसे पूछूंगी कि नाउ डेज और दीज डेज में क्या फर्क है। आपने गूगल पे चेक करके कल मुझे बताना है। जो इसको इसका सही आंसर मुझे देगा, मैं उसको एक एक्स्ट्रा मार्क दूंगी। हम लोग ये मार्किंग वाला सिस्टम अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, एक नंबर मिलेगा उसको जो सही बताएगा मुझे कि डिफरेंस क्या है नाउ डेज में और दीज डेज में, ठीक है। राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी। एज ऑफ नाउ, हाँ ये भी आपका होमवर्क है। नाउ डेज, दीज डेज, एज ऑफ नाउ, ये तीन चीजों का इनमें क्या डिफरेंस है आपने मुझे तीनों बताने में, ग्रुप में पिक्चर शेयर करूंगी। ये आपका होमवर्क है, आपने सर्च करना है एज ऑफ नाउ हम कब यूज करते हैं, और बाकी जो है नाउ डेज और दीज डेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑफन मतलब अक्सर, इन टूडेज टाइम यानी कि आज के दिन की अगर बात करें तो, एज वी स्पीक, कि जैसे हम बात करते हैं, कि जैसे मैंने बात शुरू की, एज वी स्पीक वी से दैट वी हैव टू गो, जैसे हमने बात शुरू की हमने कह दिया हमने जाना है। एवरी डे, रोज, करंटली मतलब अभी, अब, आजकल, या रूटीन की जब आप बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर औकात। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। एट प्रेजेंट, आज के दिन की अगर आप बात कर रहे हैं या उस लम्हे की बात कर रहे हैं। राइट दिस सेकंड, के एग्जैक्टली उस वक्त की बात हो रही है। ऑन अ डेली बेसिस, ये तो मतलब रोज की रूटीन के बारे में। जी, इससे पहले कि मीटिंग का टाइम एंड हो जाए, 3 मिनट्स रह गए हैं। आप लोग अपने माइक्स ओपन करें और मुझे बताएं आपने कल क्या लर्न किया, परसों क्या लर्न किया, आज क्या लर्न किया। मैं वन बाय वन पूछती हूँ हाजरा आपसे, अभी तक की आपकी क्या लर्निंग है जनरली, क्या चीज आपको अच्छे से समझ आई है? मुझे मैम आप पहले बाकी से पूछ ले फिर मुझसे पूछ लेना। अच्छा, इसका मतलब है कुछ भी समझ में नहीं आया, ये तो नर्वस करने वाली बात है यार। नहीं मैम, काफी कुछ समझ में आ गया, मतलब काफी कुछ सीखने को मिले, लेकिन चलो, हाँ चलेंगे आ बाकियों गया। से भी पूछ ले। मैं अभी बता देती हूँ, चलो आपने शुरू कर दिया। फ्रेज और क्लॉज अच्छा, ये हमें पता था कि क्या होते हैं, मतलब क्या चीज होती है, लेकिन इनका ठीक नाम है, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या चीज होती है। तो ये एक चीज ठीक है, मैंने बिल्कुल नहीं की है। बाकी तो चलो ठीक है। खैर, थोड़ा सा बेसिक चल रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत हमें अंदाजा होता है। और हाँ, अभी वो हाँ। जो मैंने बोला कि आई हैव बटर फिंगर्स एंड आई एम एन अर्ली, मैंने अभी कुछ ओके, नया, बिल्कुल नया सीखा। अच्छा बाकी चले। भी है, और अच्छा इसी एक तरह, किरण जी जी, ग्लव्स भी है,
जो मैंने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, ये भी मैंने बिल्कुल नया सीखा है। ओके ओके, चले बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। सवेरा जी, जी मैम, कैसा मुझे चल? प्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेस, ये क्लॉज, स्वेम्ड और आज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और जैसे कि चले, अभी इस हमारे दूसरे फ्रेंड ने भी यही बताया ना कि हमने ये टॉपिक पहले सुन रखा था लेकिन हमें इनके नाम नहीं आ रहे थे, अब बिल्कुल नाम नहीं आ क्लियर रहे हो। थे बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आयशा जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी सब समझ में आया और अच्छे थी। और आज वाला कुछ न्यू सीखा हमने, बहुत सी वर्ड सीखे और चीजें सीखी इससे। हाँ, और ये जो वर्ड्स मैं सिखा रही हूँ, इनको मैं एक दिन पूछूंगी भी, और मैं कभी भी पूछ लेती हूँ कि मैंने फलानी क्लास में कौन से वोकेबलरी वर्ड्स दिए थे। तो ये फंसाने वाली गेम भी है बीच में, आपको पता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है, जेन में रख रहे हो वर्ड्स, ठीक है। हम उस लम्हे के इंतजार में हैं, मैम। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जी ईमान, आपका क्या फीडबैक है, क्या लर्निंग हुई आपकी? प्रीति में मन था कुछ नहीं। ईमान है हमारे साथ? जी इरम, आप बताएं। सच्चा तो है। आप प्रेजेंट क्लॉज वाला समझ में आया। अगर आप डेली बेसिस पे, जैसे आपने स्वॉर्म का वर्ड यूज किया, अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप वोकेबलरी का कोई एक वर्ड भी अगर आप हमें देंगी तो भी बहुत अच्छा है। हमारे जो है ना वोकेबलरी लिस्ट में एक एक चीज की एडिशन होती रहेगी और हमारी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि मैं स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप ए से लेके, एक एकेडमी मैंने बहुत अरसा पहले ज्वाइन की थी एकेडमी, उन्होंने मुझे हायर किया था एज अ टीचर, अभी बहुत नई थी मैं। तो वो मुझे कहते थे कि आप ना ए के जो वर्ड्स होते हैं ना डिक्शनरी में, वो सारे ए के वर्ड्स पहले याद कराएं, फिर स्टूडेंट को बी के वर्ड्स याद कराएं। मैंने ये करना शुरू किया और इतना बुरा